Hello, welcome to my accountancy class, the Masters Heard. Before we start the video, watch, give a thumbs up if you like the video and subscribe the channel. Now, today's class topic is question number 28 of the chapter Dissolution. Yes, Beval, addition 2020-21. Here, you can see I have written the question on the left hand side, my left hand side and your right hand side. And whatever the requirements you have been given, the question are written here, and the requirement of the question which you have to prepare here. First of all, before I start the solution, I would like to give the summary, or I would like to clear the question. In question number 28, there are three partners A, B and C, ratio 1:1:1. In the question it was written that they are sharing equal profit share. Balance sheet you have been given on 31st March 2020. Creditors 50,000, reserve 12,000, and the capitals of the partners, cash, stock, debtor, loan to the partner, means loan to A, investment, furniture, building, and these are the adjustments relating to utilizing the assets and the liabilities. Now, students, these types of questions are solved in the 4 steps. First step, read the last line of the question and draw the format. First requirement of the question is realization account, partners capital account and the cash account. Now you are doing the format of realization account. Draw the format, particulars amount, 4 column. Capital account, partners capital account, particulars amount A, amount for B, amount for partners C. Particulars A, B, C. Here you are writing the name of the partners instead of writing amount, but you will write the amount here. And then the cash account. On the board I have not drawn the cash account format because I am not having the space. After 2 minutes I will draw the format for cash account also. Now first step has been completed. Now we are coming on the second step of the question. Second step, solve the balance sheet of the question, start to close the accounts. First check the realizable assets, debtors, stock, loan, investment, furniture, building. Now these are the assets which you are to write in the debit side of the realization account, so that you can prepare the realization account and you can close all the assets account. Assets account के आपके सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है, लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था. असेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, जब उनको क्लोज किया जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं. एंट्री क्या बनती है, असेट्स को क्लोज क्रेडिट और रियलाइजेशन एक टेम्पररी अकाउंट बोल देते हैं, उसको डेबिट. तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट. इस तरीके से आपने रियलाइजेशन अकाउंट में सारी असेट्स के बैलेंसेस ट्रांसफर कर दी. वो असेट्स जो रियलाइज हो सकती हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक. अब बात रह जाती है आपकी यहाँ कैश और लोन रह गया है. उससे पहले आप यहाँ ये लायबिलिटी साइड, रिजर्व, क्रेडिटर्स, कैपिटल. पहले क्रेडिटर्स को देखें, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी अकाउंट क्लोज करते तो डेबिट कर देते हैं, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आपने लिख दिया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आपने लिखा है क्रेडिटर्स. इस तरीके से आपकी ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज. अब आती है बात रिजर्व्स की और कैपिटल्स की. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आपने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी. पार्टनर्स की जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं 40, 25, 15 आपने यहाँ मेंशन कर दिए.
इसके बाद जो आपने मेंशन कर दिए, बात आती है रिजर्व्स की। पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स के पुराने इश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री, इस अकाउंट को क्लोज करना है। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट, तो कैपिटल इनकी बढ़ गई, क्रेडिट कर दिया कैपिटल्स को, और इस तरीके से रिजर्व अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। अब बात करते हैं लोन टू ए। देखिए फर्म ए को पेमेंट करेगी उसकी कैपिटल के लिए, और साथ के साथ फर्म ने जो ए को लोन दिया है उसके लिए कैश मंगाएगी। आप यदि किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं और साथ के साथ मंगा भी रहे हैं, तो आप उसे एडजस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि जो उसको देना है और जो मंगाना है उनको आपस में एडजस्ट करने के बाद नेट इफेक्ट देखते हैं कि क्या लेना है क्या देना है। तो फाइनली हम कह सकते हैं जो इसका डेबिट बैलेंस है लोन का, इसको आप पार्टनर की कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी कैपिटल को कम कर दीजिए कि भाई तुझे इतना अब हम कम देंगे। वैसे भी आप देखें तो पार्टनर ने को लोन दिया हुआ है फर्म ने, हम उससे कह रहे हैं ठीक है तेरा लोन एडजस्ट हो गया, तेरी कैपिटल घटा रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, लोन को क्रेडिट कर दिया, अकाउंट क्लोज, और कैपिटल को कम कर दिया। अब इस तरीके से आपका केवल बैलेंस शीट के अंदर एक ही बैलेंस रह गया कैश का, और इसके लिए आपको कैश अकाउंट बनाना होता है। अब हम कैश का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। बैलेंस लिख देते हैं पहले। ब्रॉड फॉरवर्ड 3700 था जो अभी दिया हुआ था बैलेंस शीट के अंदर कैश का। आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप वहां से देख सकते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट कैश अकाउंट आपने बना लिया कैश अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप था हमारा रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉर्मेट। सेकंड स्टेप बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं रही, सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, केवल दो को छोड़कर, कैश और कैपिटल को छोड़कर। थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब ये जो एडजस्टमेंट्स हैं आपकी असेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करने से रिलेटेड है, और अब केवल आपके पास 3 अकाउंट्स ही ओपन हैं, रिलेशन, कैपिटल और कैश। जो भी जर्नल एंट्रीज पास होनी है या जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है, वो केवल इन 3 अकाउंट्स के बेस पर ही होना है। रिलेशन को डेबिट, कैपिटल को डेबिट, कैश को डेबिट, या इनमें से किसी को क्रेडिट, इन्हीं में से डेबिट, इन्हीं को क्रेडिट, आपस में 3 अकाउंट से ही होना है जो कुछ होना है। और ये 3 अकाउंट से आपस में एडजस्ट होकर, जर्नल एंट्री बनकर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होकर, या आपस में एडजस्ट होकर लास्ट में क्लोज हो जाएंगी, कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं रहेगा। नाउ इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट, ए पार्टनर है आपका, टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹18,000। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 कर दी गई है और ए ने इस एग्रीड वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को ले लिया। इससे ए की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई पार्टनर जब फर्म की कैपिटल लेकर जाता है, तो आपको असेट लेकर जाता है, तो वो उसके घर पर बढ़ता है, लेकिन फर्म उसकी कैपिटल को घटा देती है कि ठीक है एसेट ले जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम करो, कम पेमेंट करना। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिस्क्लोज किया इन्वेस्टमेंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कम कर दी कैपिटल, टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया एज कैपिटल अकाउंट के नाम से, बाय एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्क्लोज किया इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज। अब ये आपकी एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट रियलाइज फिक्स्ड असेट्स 29,700, स्टॉक एंड डेटर 80,000। तो
तो ठीक है, आपने रियलाइज मींस फिक्स एसेट्स को सेल कर कर, स्टॉक के डेटर को सेल करके आपका ये टोटल अमाउंट आएगा। जैसे ही अमाउंट आएगा आपका कैश बढ़ेगा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो रियलाइजेशन को पकड़ लेते हैं, जनरल एंट्री बना लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ किससे? कैश से, क्योंकि कैश बढ़ेगा। फर्नीचर से, स्टॉक से, डेटर से, बिल्डिंग से। आपने टोटल किया इसका अमाउंट, टोटल आ गया 1,09,700, इन दोनों का टोटल किया तो, क्योंकि आपने असेट्स को रियलाइज किया, स्टॉक को रियलाइज किया, डेटर्स को रियलाइज किया। इस तरीके से इस एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब बात करते हैं आगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1300 आपने पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹800। क्रेडिटर्स आपके थे 50,000 के, उन्होंने 800 की डिस्काउंट अलाउ की, तो 50,000 से 800 माइनस किया आपने, रह गया 49,200। 49,200 का पेमेंट अब आपको करना है फर्म को। तो 49,200 और ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस, तो ये आपका आ गया 50,500 का पेमेंट। और देखें एक्सपेंसेस का 1300 और ये अभी हमने कैलकुलेट किया था 49,200। साथ के साथ जब आपने देखा कि चलो इन दोनों का पेमेंट कर दिया, तो एंट्री बनती है कैश कम हो जाता है, एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस 1300, क्रेडिटर्स अभी हमने डिस्काउंट माइनस करके 49,800, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल से रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन आपको बताएं यहां क्या हुआ था, अभी हमारा एक बीआर था, बिल्स रिसीवेबल है ये, और बिल्स रिसीवेबल का क्या हुआ, हमने अंडर डिस्काउंट कराया था। ये आपको 11th क्लास में हमने लर्न करा होगा कि बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर डिस्काउंट। हमने एक बिल था बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो जब डिस्काउंट कराया था तो बैलेंस बढ़ाते हैं, हम एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू बीआर। अब बैंक बैलेंस हमने बढ़ाया था, आज जब उस पेमेंट की बारी आई होगी तो हमारे कस्टमर यानी एक्सेप्टर ने उसको कहते हैं पेमेंट नहीं है, तो ध्यान से शॉर्ट में लिखा है मैंने, बिल रिसीवेबल था 1500 का, अंडर डिस्काउंट था बैंक के साथ, डिस्काउंट कराया था हमने। आज वो डिसऑनर हो गया है मैच्योरिटी के डेट पर, और जो हमारा एक्सेप्टर यानी डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और उससे हमें कुछ नहीं मिलना। फर्म हैड टू पे, फर्म ने पे किया, यानी फर्म की पॉकेट से कैश जाएगा 1500, तो ये कैश भी आपको यहाँ मेंशन करना है, शॉर्ट में लिखा है मैंने बीआर के नाम से। तो 1300 तो आपका एक्सपेंस हो गया, 49,200 की क्रेडिटर्स का पेमेंट, और ये भी आपको फर्म को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ा अब। तो ये कुल मिलाकर आपका जो अमाउंट बनता है वो 52,400 का बनता है, जो आपको अपने पॉकेट से पेमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद जब आपने पे कर दिया, आपकी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं रहेगी जिसका पेमेंट करने से रह गया हो या जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ना हो। यदि है ऐसी लायबिलिटी तो उसको बुक वैल्यू पर पे करके दिखा देते हैं, लिखते हैं रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। अब आगे आपने शुरू किया इसका ट्रीटमेंट 50,000, 18,000 प्लस 1,900, 1,09,700, और इस साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल। हमारा जो फोर्थ स्टेप मैंने अभी बताया था, 3 स्टेप्स हो गए हैं, फोर्थ स्टेप पर आ गए, क्लोजिंग कर रहे हैं। क्लोजिंग आपके रिलेशन अकाउंट से स्टार्ट होती है, रिलेशन के बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद कैश। तो क्लोजिंग में आपने डेबिट साइड का टोटल किया, ये आया, और इस डेबिट साइड के टोटल को यहाँ लिख दिया, डेबिट में से माइनस किया क्रेडिट का टोटल, तो 3,000 का लॉस निकल कर आया। इस लॉस को आपने क्या किया, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 1:1 का है, मींस इक्वल है। लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया, एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मींस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
1000 1000 1000। ठीक है, अब क्या किया आपने, इसको अकाउंट को क्लोज करने के बाद इस पर आए, इसका टोटल आपने किया, सेम टोटल आपका यहां आएगा, इसमें से माइनस में 44 से माइनस किया आपने ये टोटल, तो ये कैश निकल कर आएगा बैलेंसिंग फिगर। इस बार कुछ स्टूडेंट्स को आदत हो जाती है यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने की, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है क्योंकि आपके अकाउंट्स यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उससे आपको कैश पेमेंट करना है। तो 15,000, 28,000 और 18,000 इस तरीके से आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब आते हैं कैश अकाउंट पर। कैश में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, अब देखें असेट्स को रियलाइज करके कितना कैश आया है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट था टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में आप वही डिस्क्लोज कर दें, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और बिल्डिंग। टोटल अमाउंट 1,09,700 का आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट रिसीव कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पेमेंट यहां की आपने, तो एंट्री बनेगी यहां पर रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, तो कैश को क्रेडिट करना है बाय रियलाइजेशन के नाम से रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिस्क्लोज करना है एक्सपेंस, कॉमा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल है आपका, ये हमने फिलहाल डीपी कर दिया था, ठीक है कोई नहीं। 52,400 का पेमेंट हो गया। अब आपने यहां से पेमेंट उठाया कि कैपिटल का भी पेमेंट हुआ है, तो कैश को कम कर दिया बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। पेमेंट आपने वहां से लिया 15,000 एक ही कैपिटल का, और इसके बाद 28,000 18,000। देखिए आपके सभी अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, बैलेंस शीट के जितने भी अकाउंट थे सब क्लोज, 3 अकाउंट्स ओपन रह गए थे, रिलायजेशन, कैपिटल और कैश। आपने इनको भी क्लोज करना शुरू करा। फर्स्ट नंबर आया था रिलायजेशन का, आपने क्लोज कर दिया, जो लॉस निकल कर आया पार्टनर्स की कैपिटल डाल दिया, इसको क्लोज किया तो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आई क्रेडिट माइनस डेबिट करके कैश के नाम से, आपने पेमेंट कर दिया, ये अकाउंट भी क्लोज हुआ, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, और ये जो माइनस हुआ बैलेंस आपने यहाँ शो कर दिया। अब लास्ट में आपका ये कैश अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, आपको बस टोटल करना है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब आप देखें यदि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आया, इक्वल आया, तो दोनों कहते सारा सही है जितना भी अब तक सॉल्यूशन, वरना कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि जितना कैश आपके पास अवेलेबल होगा उतना ही आपने पे करा होगा। ठीक है, तो टोटल करना शुरू करते हैं इसका। आपने इसका टोटल किया तो ये आया आपका 1,13,400, इसका टोटल किया, इसका टोटल भी आपका 1,13,400, दोनों साइड का टोटल मैच कर दिया है। ठीक है, आपका जो ये लोन था पार्टनर का, इसका ट्रीटमेंट कुछ और भी हो सकता है, आप कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट, फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये भी एग्जैक्टली ठीक है, वरना कोई इफेक्ट नहीं आना। आपको तो बैलेंस चेक करना है कैश का, लास्ट में दोनों साइड का टोटल मैच कर जाए, क्योंकि जितना आपके पास कैश अवेलेबल है उतना ही आपको फाइनली पे करना है फर्म से, चाहे वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के लिए हो या इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल्स के लिए हो, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। I hope that you have got all the concepts of this question and the solution which I have taught. Now, once again I repeat, give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.